we are going to learn a very important topic. In fact, the most important topic as far as your entrance exam is concerned in solutions and qualitative properties. Then the topic is Van 't Hoff factor. Van 't Hoff's factor, and the symbol is I, the small I. Many times what happens is the value of the observed colligative property CP and the theoretical colligative properties, they are not same. So if I want to make it same, how do I do that? I'll have to compensate the theoretical value, and to make it equal to this side, I'll have to multiply by a factor, right? And obviously to the theoretical side only, because you can't change observation, that is a fact. So what we can compensate, what we can adjust is with the theory value. Then this becomes equal with the observed colligative property. It's just like maths. In maths we have factorizations. Like 4 and 2 are not equal. They are not equal. To make them equal, then I need to have a factor 2 here. So this is making these two equal, right? 4 and 2. On the same lines, this is a factor, that is Van 't Hoff factor, which is making theoretical colligative property and observed colligative property का difference very less. वो कम हो जाएगा. इसके लिए I का formula क्या हो जाएगा? It will be what? Observed colligative property upon, correct ना? Observed colligative property upon theoretical colligative property. ये I का फॉर्मूला है. तो I के जितने भी फॉर्मूला है मैं अभी आपको लिख के देता हूँ. Van 't Hoff फैक्टर, उसकी जरूरत क्या है समझ में आया? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और थियरी जो फॉर्मूला से आता है उसमें जो फर्क आता है उसको मिनिमाइज करने के लिए Van 't Hoff फैक्टर यूज किया जाता है. Okay, let's see different formula for I. Van 't Hoff factor can be observed colligative property upon theoretical colligative property. The first colligative property is lowering in vapor pressure. Observe, O stands for observe, upon lowering in vapor pressure, theoretical, right? Then elevation in boiling point. Observe is to elevation in boiling point, theoretical. Then depression in freezing point observed is to depression in freezing point, theoretical. Then comes osmotic pressure. Observed is to osmotic pressure, theoretical. Then the next one, these are the 4 colligative properties. We can also say, we know that colligative properties are directly proportional to the number of moles of solute. So that is why I can say number of moles of solute observed is the number of moles of solute, theoretical, which is also equal to molar mass of the solute, theoretical, upon molar mass of the solute observed. यहाँ पे उल्टा होगा. You know number of moles of solute and molar mass of the solute are inversely proportional. So एक बार सिर्फ उल्टा होगा, theoretical upon observed. Okay, let's see this thing, the relationship between Van 't Hoff factor I and alpha. Now what is alpha? Alpha can be degree of dissociation or degree of ionization. Dissociation and ionization are two different reactions. But degree means extent, कि dissociation कितना हुआ है, extent, या degree of ionization, दोनों का symbol एक ही है, alpha. Dissociation का उल्टा होता है association, degree of association, मतलब association कितना हुआ, और association को ही polymerization भी कहते हैं, है ना? MER, mer मतलब molecule, polymer मतलब एक से ज़्यादा molecule साथ में आना, association, degree of polymerization, उसका भी symbol alpha ही है. तो ये जो अल्फा है उसका I के साथ रिलेशन देखना है. उसमें 2 कंडीशंस है, ये सब 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं हम लोग. दैट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट? दैट परसेंटेज डिसोसिएशन अगर लेस देन 100 रहेगा तो अल्फा इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू 1, है ना? दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? एंड परसेंटेज डिसोसिएशन एग्जैक्टली इक्वल टू 100% रहेगा तो अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाता है. उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
alpha is equal to I minus 1 upon n dash minus 1, where I is Bandt factor, alpha is degree of dissociation here. n dash क्या होता है? n dash मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन के बाद. मैं आपको बताता हूं. जैसे हम लोग अगर एक सॉल्ट लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 twice, how it will dissociate in its aqueous solution? The cation is +2 and the anion is PO4 -3, है ना. Ca +2 and PO4 -3. Calcium is present 3 times and phosphate is present 2 times. ऐसे करेक्ट. इसको मानते हैं x और इसको लेते हैं y. तो n डैश क्या होता है? n डैश इज बेसिकली x प्लस y. मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ केटायन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एनायन, दैट इज 3 + 2. तो इस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए वो हो गया 5. हमेशा 5 नहीं होता है, सॉल्ट टू सॉल्ट डिफर करेगा, कम से कम 2 होगा ही, क्योंकि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं. मैंने डिसोसिएशन लिखा है. तो n डैश इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आयंस, ऐसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस. ऐसे दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं. लेट्स से वी हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड. कैसे डिसोसिएट होगा? Al+3 and 3Cl-. सो व्हाट इज n डैश? इट इज x + y. यहाँ पे x क्या है? 1 और y क्या है? 3. तो यहाँ पे 4 आएगा. आर यू गेटिंग इट? वैसे अगर हम लोग NaCl लेते हैं, कॉमन सॉल्ट, हाउ इट डिसोसिएट्स? Na + NCl-, 1 कैटायन एंड 1 एनायन. तो n डैश क्या हो गया? 2. तो दैट इज n डैश, राइट. और इसका प्रूफ है आपको HSC में. एक्चुअली HSC में सिर्फ यही फॉर्मूला है, दैट्स इट, है ना. बोर्ड एग्जाम के लिए, ये एंट्रेंस के लिए, दिस इज फॉर योर JEE या नीट, करेक्ट ना. ये HSC में नहीं लगेगा आपको, ज्यादातर यूज होता नहीं है. इसका प्रूफ मैं आज के लेक्चर में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, है ना. HSC पॉइंट ऑफ व्यू. ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं, इसको एडजस्ट किया है, रीअरेंज किया है इन टर्म्स ऑफ I, करेक्ट or नॉट, राइट. इसको प्रूव करेंगे. ये 100% डिसोसिएशन नहीं रहेगा, तब आएगा, मतलब 70%, 80% डिसोसिएटेड ऐसा सॉल्ट रहेगा. सम में जब आएगा, है ना, 80%, 70% या कुछ भी 50%, मतलब लेस देन 100 हो गया, तो ये फॉर्मूला लेना है. अगर डिसोसिएशन 100% है तो अल्फा क्या हो जाता है? 1. तो अल्फा 1 इधर सब्स्टिट्यूट करो. अल्फा अगर 1 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला क्या होगा, है ना. I विल बी इक्वल टू व्हाट? ये 1 लिख रहा हूं, 1 प्लस अल्फा 1 ले लिया, करेक्ट or नॉट. तो बचा क्या? n डैश -1. तो 1 तो गया कि नहीं, मतलब I इज इक्वल टू n डैश, इसके लिए लिखा है इसे, राइट. ये आएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. सिंबल अल्फा ही है और यहाँ पे ये फॉर्मूला है. अल्फा इज इक्वल टू 1 - I, उल्टा है. I -1 का उल्टा हो गया 1 - I. यहाँ पे n डैश -1 है, यहाँ पे 2 चेंजेस आएगा. 1 माइनस होगा, दूसरी बात 1 अपॉन n डैश, राइट. ये फॉर्मूला है. ये एसोसिएशन के लिए, ये डिसोसिएशन का है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन का है, करेक्ट. क्योंकि दोनों की वजह से ऑब्जर्व और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्क आता है, एसोसिएशन की वजह से भी और डिसोसिएशन की वजह से. तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है. इन टर्म्स ऑफ I लिखा है, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं. आर यू गेटिंग दिस? अभी यहाँ पे n डैश क्या लेना है? n डैश मतलब पॉलीमराइजेशन कितना होता है. सपोज ऐसा लिखा है डाइमर. डाइमर मतलब n डैश शुड बी 2. ट्राइमर के लिए n डैश शुड बी 3, करेक्ट ना. टेट्रामराइजेशन n डैश शुड बी 4. मतलब कितने मॉलिक्यूल्स साथ में आ रहे हैं, कितने का एसोसिएशन हो रहा है, दैट इज n डैश, करेक्ट ना. और ये अल्फा जब 1 हो जाएगा, मतलब 100% डिसोसिएशन के लिए यही फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा कि नहीं. क्योंकि यहाँ पे वापस अल्फा 1 डाल के देखो, तो यहाँ पे 1 इमेजिन करो, तो क्या होगा? I विल बी इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे 1 है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस, और ये हो जाएगा ऐसे n डैश. ये निकल गया. I इज इक्वल टू 1 अपॉन n डैश, करेक्ट ना. तो दिस इज द चार्ट जिसको हम लोग यूज करेंगे. मैं कुछ सम्स इसके भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, MCQs, राइट. लेकिन पहले इसका डेरिवेशन बताता हूँ, ये फॉर्मूला कैसा है. Okay, let's see. I'm supposed to prove that alpha is equal to I minus 1 upon n dash minus 1. Okay, as per the textbook, ये chemical equilibrium में आ चुका है, वैसे ही है. Let n moles of a non-electrolyte. अब non-electrolyte इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 1 होता है, करेक्ट. मतलब उसका डिसोसिएशन ज्यादा नहीं होता है या एसोसिएशन ज्यादा नहीं होता है. तो ऑब्जर्व और थियोरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कम से कम फर्क आएगा. इसके लिए हम लोग ऐसा लेते हैं, है ना. लेट्स टेक इट इज समथिंग AX dy.
नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट AXBY be dissolved in 1 kg of water, करेक्ट, या सॉल्वेंट कोई भी हम लोग भी ले सकते हैं, है ना। 1 kg इसके लिए लिया है क्योंकि आगे जाके हम लोग मोलैलिटी कंसिडर करने वाले हैं जिसमें मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ता है। सो इसके लिए 1 kg लिया है। एनी सॉल्वेंट, जनरली वाटर लेते हैं, डिपेंड्स सोल्यूट क्या है उसके ऊपर, राइट। लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहा हूं, है ना। जो फॉर्मूला मुझे प्रूव करना है वो डिसोसिएशन का है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of AXBY at equilibrium, right? Now AXBY, how it undergoes dissociation in its aqueous solution? It will undergo dissociation as AXBY aqueous plus aqueous gives us, rather it should be reversible, A है ना, the charge should be plus y, करेक्ट ना, ऐसा होना चाहिए, बट टेक्स्ट बुक में कोई ऐसा चार्ज लिया है n टाइम्स, करेक्ट ना, एंड b is taken as something m times, and this is present x times, this is present as y times, ऐसे। I am just following the textbook here, any charge it can be, ऐसे लिया है, करेक्ट। now moles present initially, and your moles present at equilibrium, EQ मतलब equilibrium। यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा m माइनस m अल्फा, जबकि ये आएगा x टाइम्स m अल्फा और ये आएगा y टाइम्स m अल्फा, ऐसे, करेक्ट। अब ये कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। ये मोल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम m माइनस m अल्फा कैसे आया वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। लेट अस जस्ट सी पहले अल्फा क्या होता है। अल्फा इज मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स प्रेजेंट इनिशियली, करेक्ट ना, ये इसका फॉर्मूला है अल्फा का, राइट, है ना। सो मोल्स प्रेजेंट इनिशियली मतलब हमने m लिया है, करेक्ट ना। कैन यू सी दैट, कम सी लिखा है ना क्लियरली, मोल्स प्रेजेंट इनिशियली m लिया, ऐसा। तो इसके चलते व्हाट विल बी मोल्स डिसोसिएटेड, है ना, मोल्स डिसोसिएटेड क्या आएगा, m into alpha, right? And this moles dissociated should be m into alpha. Now moles present at equilibrium कितने प्रेजेंट रहेंगे, should be equal to initial moles, that is m minus moles dissociated, इतने प्रेजेंट थे उसमें से इतने डिसोसिएट हो गए ना, डिसोसिएटेड निकाला कि नहीं, तो m माइनस m अल्फा क्या आ गया, मोल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, इस तरीके से आता है। अब ये x टाइम्स क्यों आया और y टाइम्स क्यों आया, देखो ओरिजिनल इसमें रेशियो क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, करेक्ट ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है। जब इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो a का कैटायन का x मोल फॉर्म होता है और एनायन का y मोल, तो ओरिजिनल रेशियो क्या हो गया 1:x:y, मोल्स डिसोसिएटेड इज टू मोल्स फॉर्म्ड, द रेशियो इज 1:x:y। तो यहाँ पे ये पूरे इसमें ये जो है वो मोल्स डिसोसिएटेड है, कितना है वो m अल्फा इज टू x m अल्फा इज टू y m अल्फा, तो ये जाएगा ना, क्या बचा है ना, ये सॉरी y m अल्फा, y m अल्फा, m अल्फा जाएगा तो 1:x:y, ओरिजिनल रेशियो आया कि नहीं, मोल्स डिसोसिएटेड इज टू फॉर्म्ड इज टू फॉर्म 1:x:y। इसके लिए x टाइम्स m अल्फा y टाइम्स m अल्फा आएगा, दिस इज एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड। ओके, जस्ट सी नाउ व्हाट आर द मोल्स प्रेजेंट हियर, टोटल मोल्स ऐसे लिखते हैं, टोटल मोल्स प्रेजेंट at EQ मतलब equilibrium should be what, it should be actually, है ना, this plus this plus this, that is m minus m alpha plus x times m alpha plus y times m alpha, ये ऐसे आएगा।
नाउ दिस इज मोल्स प्रेजेंट मतलब क्या, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व आएगा। ऑब्जर्व कब करेंगे, जब प्रेजेंट होगा तब ना। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड शुड बी, है ना। ये एम ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ में से टर्म 2, 3 और 4 में से एम अल्फा निकाल रहा हूँ, पॉजिटिव एम अल्फा बाहर निकाला, तो इधर बचेगा x प्लस वाई माइनस 1 ऐसे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड, अभी m कॉमन निकालते हैं, m इंटू ब्रैकेट 1 प्लस, है ना, अल्फा इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस 1 ऐसे, है ना। m कॉमन निकालने के बाद m और m इसमें से गया, तो ये बचा है ना। नाउ व्हाट इज x प्लस वाई, आप जानते ही हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कोएफिशिएंट्स ऐड किया ना कैटायंस एनायन का, तो x प्लस वाई को रिप्लेस कर देते हैं n डैश से, करेक्ट। So what should be the next step? It should be number of moles observed is equal to m into bracket 1 plus alpha into bracket n dash minus 1, correct ना, x plus y n dash हो गया। अब number of moles observed upon ये m, now what is this m, हमने assume किया है, ये initial moles m लिया है हम लोगों ने, ये लिया है ना, लेट मतलब क्या है, हमारा assumption है, तो m क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकल, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकल विच इज 1 प्लस अल्फा इनटू ब्रैकेट n डैश माइनस 1, बट दिस इज वन टॉप फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकल, वन टॉप फैक्टर i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इनटू ब्रैकेट n डैश माइनस 1, करेक्ट ना। तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, है ना, अल्फा अगर आइसोलेट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो i माइनस 1 हो जाएगा ये, और n डैश माइनस 1 डिनोमिनेटर में आएगा, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना है, करेक्ट ना। कम्स हियर अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n डैश माइनस 1, ये प्रूव हो गया। ओके, ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर कुछ एक आध दो सम्स देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर, वैन हॉफ फैक्टर मतलब I for a weak acid HX which is 70% dissociated, है ना, 100% नहीं है, करेक्ट, in its aqueous solution, करेक्ट ना। वन टॉप फैक्टर मतलब I निकालना है, तो उसके लिए पहले n डैश चाहिए, करेक्ट ना। तो हाउ HX will dissociate in its aqueous solution, HX in its aqueous solution dissociates as H plus aqueous and X minus aqueous. So what is n dash, X plus Y, that is coefficient of cation plus coefficient of anion, that is 1 plus 1, this is going to be 2 here, that is your n dash, correct. Now alpha, we don't know alpha, what we know is the percentage dissociation, तो एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, परसेंटेज डिसोसिएशन, ये 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, परसेंटेज डिसोसिएशन इज अल्फा इनटू 100, करेक्ट ना। तो इसके चलते व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज बेसिकली परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100 ऐसे आएगा, राइट। परसेंटेज डिसोसिएशन कितना दिया है, 70% अपॉन 100 ऐसे, तो अल्फा हो गया 0.7। तो अभी I का फॉर्मूला लिखता हूँ, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू ब्रैकेट n डैश माइनस 1, व्हाट इज योर n डैश, व्हाट इज योर अल्फा, 1 प्लस अल्फा कितना है 0.7, n डैश कितना है 2 माइनस 1, व्हाट इज 2 माइनस 1, 1 ही हो गया, तो 1 प्लस 0.7 इज 1.7, ये आपका वैन टॉप फैक्टर आ गया। Okay, see a second question here. What is the Bantoff factor of an acid HA in its aqueous solution? ये पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बोर्ड पे रखा है, ये अभी हमने सॉल्व किया था, फिर भी मैंने इरेज नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है, जो यहाँ बिल्कुल दिया नहीं है। इसका मतलब वी आर सपोज टू व्हाट, अज्यूमिंग व्हाट, अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन, करेक्ट ना, किसका, HA का, in its aqueous solution, what it should be, H plus aqueous and A minus aqueous ऐसे, तो n dash to 2 आएगा कि नहीं, करेक्ट ना। और यही आपका I है,
क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन क्या है 100 है, तो उसमें फॉर्मूला ही है ना I इज इक्वल टू एन डैश, करेक्ट ना। परसेंटेज डिसोसिएशन जब लेस देन 100 होता है 100%, तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, है ना, या आई का फॉर्मूला लेते हो 1 प्लस अल्फा इंटू ब्रैकेट एन डैश माइनस 1, करेक्ट है ना, जो हमने इधर यूज किया, क्योंकि ये देखो लेस देन 100% डिसोसिएशन है कि नहीं। अब यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन दिया नहीं, मतलब वी हैव टू अज्यूम 100% डिसोसिएशन, है ना, जिसमें अल्फा क्या होता है, अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो अल्फा इधर 1 डालते हैं 100% डिसोसिएशन के लिए, करेक्ट ना। ये बताया था, ये 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ये 1 डालेंगे ये, है ना, और इसके लिए अल्फा 1 होता है कि नहीं ऐसे, तो ये 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ये 1 एन डैश माइनस 1, तो 1 बन गया है ना, तो आई इज इक्वल टू क्या बचा एन डैश, वही मैं यूज किया, तो आपका आंसर क्या है 2। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ऑर्गेनिक, लेट अस से कोवेलेंट non-volatile solute when dissolved in a volatile organic या covalent solvent, like solid dissolves in like solvent, undergoes tetramerization. So the question is calculate I, Van't factor. Correct. Now what do you mean by tetramerization? This is basically polymerization. Correct or not? तो polymerization यहाँ पे क्या करेंगे, assuming 100% एसोसिएशन, है ना, क्योंकि परसेंटेज एसोसिएशन कुछ दिया ही नहीं है, दैट इज अल्फा शुड बी 1, so what will be I, it should be 1 upon n dash, करेक्ट ना, एंड कितना आएगा n dash 1 upon 4, है ना, टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या, दिस इज 4 मॉलिक्यूल्स कमिंग टुगेदर 1/4, यही आपका आंसर है, या 0.25 है, ये आंसर आ सकता है। इट इज दैट सिंपल। यहाँ पे परसेंटेज एसोसिएशन 100% ही है, करेक्ट। सो ये वेंट ऑफ फैक्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अलावा वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड एज फार एज योर एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। इफ यू लाइक ये जो पढ़ा है, सब कुछ समझा है, तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।